جانتا سیاہ زلفے والے کون ہیں، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ سامنے والے پہاڑ کے غار میں ایک ایسا انسان ہے جو پھوٹ کر اس طرح سے رو رہا ہے جس کے رونے کی آواز کو سن کر بکریوں نے چرنا بند کر دیا ہے، بکریوں نے چرنا بند کر دیا ہے۔ اے مسلمانوں، جو میرے مصطفیٰ آنسو بہا رہے تھے، خاندان کے لیے نہیں بہا رہے تھے بلکہ گنہگار امت کے لیے بہا رہے تھے، ہمارے اور آپ کے لیے بہا رہے تھے۔ آج جب ہم نبی کے نام کا جلوس لے کر نکالتے ہیں تو بے ایمان طبقہ، کلمہ پڑھنے والا طبقہ دلیلیں مانگا پھرا کرتا ہے، یہ دلیلیں مانگا کرتا ہے۔ کہاں لکھا ہے جلوس نکالنا چاہیے؟ کہاں لکھا ہے جشن منانا چاہیے؟ ارے میرے مصطفیٰ نے ہماری خاطر جو ہے آنسو بہائے ہیں، یہ ہمارا تقاضا بنتا ہے، فریضہ بنتا ہے۔ ہم ایک دن نہیں بلکہ سال کے 365 دن مصطفیٰ جان رحمت کا جلوس نکالے، نبی کا شکریہ ادا کرے، تب بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، تب بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت آنسو بہا رہے ہیں گنہگار امت کے لیے۔ صحابہ فرماتے اگر اس طرح کوئی رونے والا ہوگا تو کوئی اور نہیں، میرے نبی ہوں گے، مصطفیٰ جان رحمت ہوں گے۔ صحابہ تشریف لے گئے، میرے مصطفیٰ گنہگار امت کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں۔ لوگ حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا اے فاطمہ، تمہارے ابا جان کا پتہ تو چل گیا ہے مگر سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ تشریف لے جاتی ہیں اور لے جانے کے بعد جو ہے رب کی بارگاہ مریضہ پیش کرتی ہیں، مولا میں تیری بارگاہ میں میں دعا کرتی ہوں، میرے والد گرامی جو ہے سجدے سے سر کو نہیں اٹھا رہے ہیں، آج تک میرے سر سے چادر تطہیرہ نہیں اتری ہے، آج میں چادر تطہیر کو جو ہے اپنے سر پاک سے اتار کر تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا کرتی ہیں، مولا میرے والد گرامی سجدے سے سر کو اٹھا لیں۔ جیسے ہی یہ وسیلہ دینے کے لیے حضرت فاطمہ عریضہ کرتی ہیں، ویسے ہی مصطفیٰ جان رحمت سجدے سے سر کو اٹھا لیتے ہیں اور اٹھانے کے بعد فرماتے فاطمہ تو نے بہت جلدی کر دیا اور مجھے اٹھا دیا، میری کچھ گنہگار امت رہ گئی تھی جس کو میں بخشوا نہ پایا، تو نے جلدی کر دیا، تھوڑی دیر اور میں سجدے میں رہتا تو اپنے رب سے ساری امت کو بخشوا لیتا۔ سرکار امام حسین کربلا کے میدان میں ہے، ارشاد فرماتے ہیں عمل تو ہو گئی ہے، عبادت تو ہو گئی ہے، ضرورت پوری اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نانا جان نے، میری ماں نے میرے نانا جان کو سجدے سے جلدی اٹھا دیا تھا، میرے نانا جان نے کہا تھا فاطمہ جلدی کر دیا ہے، سجدے سے اٹھا دیا ہے، اور جو ہے تھوڑی دیر اور میں سجدے میں رہتا تو نانا کی گنہگار امت کو بخشوا لیتا۔ اے لوگوں، ضرورت اسی کی ضرورت میں پورا کر رہا ہوں، میں ایک ایسا سجدہ کر رہا ہوں، ایک ایسا سجدہ کر رہا ہوں کہ میں سجدے میں جا رہا ہوں اور قیامت تک سجدہ کرتا رہوں گا، یہی سجدے کو اٹھا کر نانا کے دامن میں ڈال دوں گا۔ یہ نانا تو آپ کی امت رہ گئی تھی، حسین کا سجدہ لے لیجئے، اپنے گنہگار امت کی بخشش کرا لیجئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار مقبول عالم شہید، سرکار مقبول عالم شہید، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، ممبر شریف پہ تشریف فرما معزز مکرم محترم باوقار علماء کرام، شورائے اسلام، خصوصیت کے ساتھ شاعر اہل سنت، شہنشاہ ترنم، بادشاہ ترنم حضرت علامہ مولانا محمد سفیان رضا صاحب قبلہ ازہری و محب گرامی قدر حضرت حافظ و قاری محمد حسین صاحب قبلہ و برادر اصغر حضرت حافظ و قاری محمد اشفاق صاحب قبلہ، حافظ محمد امتیاز صاحب، قاری محمد غلام نبی و دیگر طلبہ اسلام، اسلامی رشتے کی ہماری تمام خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں،
اور محترم و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے تو اپنے محبت کرتے ہیں، غیر بھی محبت کا جو ہے نذرانہ پیش کرتے ہیں، غیر بھی حسین سے محبت کرتے ہیں، غیر بھی حسین سے تعریف کرتے ہیں، غیر بھی امام حسین کا نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ تقریباً جو ہے ہمارے خیال سے جو ہمارا نظریہ ہے، قصبہ ہڑہا کے اندر لوگ امام حسین سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک امام حسین کی محبت میں کم سے کم جو ہے امام حسین کے نام پہ 4 سے 5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہوں گے۔ 4 سے 5 لاکھ لنگر حسین بھی ہو رہا ہے، امام حسین کا روضہ بھی بن رہا ہے، ذکر حسین بھی ہو رہا ہے، شامیانے بھی لگ رہے ہیں، لاؤڈ اسپیکر بھی لگائے جا رہے ہیں۔ تقریباً جو ہے ہمارے خیال سے جو ہے 4 سے 5 لاکھ روپے جو ہے امام حسین کے نام پہ عاشقان حسین خرچ کرتے ہیں، امام حسین کے نام پہ لوگ لٹا دیتے ہیں۔ شاعر نے کہا پہلے مدینے کی 2 بوند ملا لیتے ہیں، کہ پہلے مدینے کی 2 بوند ملا لیتے ہیں، پھر بیٹھ کر پینے کا مزہ لیتے ہیں، کہ پہلے مدینے کی 2 بوند ملا لیتے ہیں، پھر بیٹھ کر پینے کی مزہ لیتے ہیں۔ یزید تیرے خزانے میں اتنی دولت ہی نہیں جتنا یہ شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں، یزید تیرے خزانے میں اتنی دولت ہی نہیں جتنا یہ شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ کہ لوگوں نے دیکھا کہا حسین زندہ ہے، مکے کے در و دیوار نے دیکھا کہا حسین زندہ ہے، مکے کے محراب نے دیکھا کہا حسین زندہ ہے، مقام ابراہیم پہ حسین پہنچے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہا حسین زندہ ہے، مکے کے محراب کہہ رہے حسین زندہ ہے، مکے کی در و دیوار کہہ رہی حسین زندہ ہے۔ میرے آقا حسین مکے سے چلے ہیں، کوفہ چلے ہیں، مکے سے چلے ہیں، کربلا چلے ہیں، راستے میں چلے ہیں، جو میدان آتا ہے وہ میدان کا ذرہ ذرہ کہتا حسین زندہ ہے، ہر ایک انسان ملتا کہتا حسین بن علی زندہ ہے۔ حسین کربلا تشریف لے جا رہے ہیں، حسین مکے سے کربلا پہنچے ہیں، کربلا کے میدان میں کربلا کے میدان نے دیکھا کہا حسین زندہ ہے، کربلا کے ریگستان نے دیکھا کہا حسین زندہ ہے۔ 22,000 کا لشکر حسین کو جب دیکھا تو کہا حسین زندہ ہے۔ ابن زیاد نے دیکھا کہا حسین زندہ ہے، ابن سعد نے دیکھا کہا حسین زندہ ہے، شمر ذوالجوشن نے دیکھا کہا حسین زندہ ہے۔ 22,000 یزیدی دیکھ رہے کہ حسین زندہ ہے، حسین کی تلوار چل رہی، لوگ کہہ رہے حسین زندہ ہے، حسین کی تلوار چل رہی، لوگ کہہ رہے حسین زندہ ہے، برچھیاں بول رہی حسین زندہ ہے، تیرے بول رہی حسین زندہ ہے۔ یہ 22,000 یزیدی پکار پکار کے کہہ رہے ہیں حسین زندہ ہے۔ کربلا کا میدان کہہ رہا ہے حسین زندہ ہے، کربلا کا ریگستان کہہ رہا ہے حسین زندہ ہے، کعبے جو ہے کربلا کے در و دیوار کہہ رہے حسین زندہ ہے، کربلا کے کنکر و پتھر کہہ رہے حسین زندہ ہے، کربلا کے منظر کہہ رہے حسین زندہ ہے، کربلا کا میدان کہہ رہا حسین زندہ ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کی ذوالفقار حیدری چل رہی ہے، لوگ کہہ رہے حسین زندہ ہے، فضائیں کہہ رہے حسین زندہ ہے، ہوائیں کہہ رہے حسین زندہ ہے، تیغ و تیر کہہ رہے حسین زندہ ہے، تلوار کہہ رہے حسین زندہ ہے۔ حسین کربلا کے میدان میں ہے، یزیدیوں کو کاٹتے پڑتے بہت سارے زخم کھانے کے بعد جو ہے جب زمین پہ گر جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں اور یزیدی سر کو قلم کر دیتے ہیں۔ ابھی دنیا دار کہہ رہا تھا کہ حسین زندہ ہے، حسین کے سر انور کو جدا کر دیا گیا ہے، لاشا زمین پہ پڑا ہے، سر نیزے کے اوپر بلند ہے، اب پروردگار عالم کہہ رہا ہے اے دنیا والوں، ابھی تک تم کہتے تھے حسین زندہ ہے، اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ حسین زندہ
जिंदा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार मकबूल आलम शहीद, सरकार मकबूल आलम शहीद, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हुसैन, जिक्र शहदाए करबला, जिक्र शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब तक जिंदगी थी लोग देख रहे थे, जिस जिंदगी को दुनिया देख रही थी, दुनियादार कह रहा हुसैन जिंदा है। इमाम हुसैन चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं जिंदा है। इमाम हुसैन लड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं जिंदा है। सर कलम हो गया है, नेज़े पे बुलंद हो गया है, जिसमें पाक पे घोड़े दौड़ा दिए गए हैं। अब परवरदिगारे आलम पाबंदी लगा रहा है, ऐ दुनिया वालों, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबील मुर्दा न कहो, बल्कि वही जिंदा है जो खुदा के रजा के लिए कट जाता है। मुर्दा गुमान भी न करो, मुर्दा सोचो भी नहीं, बल्कि जो रब की रजा के लिए कट जाता है वही जिंदा होता है। जो रब की रजा के लिए कट जाता है वही जिंदा होता है। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ। मेरे आका जो है हुसैन से, मेरे आका से हुसैन है। ये बात ज़माने को मालूम है, ये बात ज़माने को पता है कि मेरे आका जो है वो सरकार सैयदना इमाम हुसैन के नाना हैं, हुसैन उनके नवासे हैं, हुसैन उनके नवासे हैं। हजरत इमाम हुसैन हुजूर के बेटी के बेटे हैं, इसलिए जो है नाना से नवासा तो होता है। ये बात दुनिया को मालूम है, ये पूरी कायनात जानती है, मगर नवासे से नाना हो ये बात इंसान के अकल में नहीं आती। दादा से पोता तो हो सकता है, मगर पोता से दादा हो अकल में आने वाली बात नहीं है। बाप से बेटा होता है, अकल में आने वाली बात है, मगर बेटे से बाप हो ये बात समझ में नहीं आती। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, यानी हुसैन जो है मेरे आका से है। ये बात तो अकल में आती है, समझ में आती है, मगर हुसैन से मुस्तफा है ये बात समझ में नहीं आती। अब मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि मेरे आका से हुसैन है और हुसैन से आका है। मेरे मुस्तफा के कहने का मतलब ये है कि मेरे आका जो दीन लेके आए हैं, जो मजहब लेके आए हैं, जो शरीयत लेके आए हैं, जो इस्लाम लेके आए हैं, मेरे आका ने जो है वो मक्के की सरजमीन पे खड़े होकर लोगों से ऐलान कर दिया, ऐ लोगों, अल्लाह ने मुझे नबी और पैगंबर बनाकर भेजा है, एक अल्लाह है, तुम उसकी इबादत किया करो। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग किया है, दीन को फैलाया है। लोग कलमा पढ़ पढ़ के मुसलमान हुए हैं, मजहब इस्लाम को फैलाया है, दीन को फैलाया है। जब मेरे आका ने दीन को फैला दिया, दीन को फैला दिया, लोग कलमा पढ़ पढ़ के मुसलमान होने लगे। फिर इसी दीन के निजाम को दरहम बरनम करने के लिए, इसी निजाम मुस्तफा को पामाल करने के लिए, काबे के तकद्दुस को पामाल करने के लिए, मजहब इस्लाम को मिटाने के लिए जब नापाक यजीद पलीद ने जो है सर उभारा था, तो मेरे आका हुसैन करबला के मैदान में गए थे और जाने के बाद यजीदियों से डट के मुकाबला किया था और मुकाबला करने के बाद अपना कुंबा कुर्बान कर दिया था, खुद कुर्बान हो गए थे। और जो है मशीयत बताए रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लेकर करबला तक एक दीन मुस्तफा से पहचाना जाएगा, नबी से जाना जाएगा, नबी से पहचाना जाएगा। मगर करबला के बाद इमाम हुसैन इसी दीन को जब बचाएंगे, अपने कुंबा को लुटाएंगे, अपने कुंबा को कुर्बान कर देंगे, तो फिर यही दीन मुस्तफा से नहीं हुसैन से पहचाना जाएगा। फिर पूरी कायनात कयामत तक पुकार पुकार कर कहती रहेगी, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, जिक्र शहुदाए करबला, जिक्र शहुदाए करबला, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हुसैन, सैयद मकबूल आलम शाह शहीद, सरकार सैयद मकबूल आलम शाह शहीद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये दीन इमाम हुसैन से पहचाना गया और क़यामत तक पहचाना जाएगा, इसलिए कि इस दीन को बचाया हुसैन ने है, इस दीन की हिफाजत किया हुसैन ने है, इस दीन के तक़द्दुस को बचाया हुसैन ने है, जो है काबे की हुर्मत को बचाया हुसैन ने है। सरकार सैयदना इमाम हुसैन करबला के मैदान में है, और सरकार सैयदना इमाम हुसैन करबला के मैदान में लड़ते लड़ते जब सजदे में चले गए, तो सजदे में तस्बीह जब पढ़ी जाती है तो 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है। इंसान बहुत जल्दी में है तो इजाज़त है 1 मरतबा भी तस्बीह पढ़ सकता है, सुबहान रब्बियल आला की 1 मरतबा तस्बीह पढ़ सकता है। 3 बार तस्बीह पढ़ी जाती है, और 3 बार पढ़ने में कितना वक्त लगता है, मगर सरकार सैयदना इमाम हुसैन ने जो है तस्बीह इतनी लंबी कर दी, तस्बीह इतनी लंबी पढ़ी, इतनी लंबी पढ़ी कि सरकार सैयदना इमाम हुसैन के सजदे में लोगों ने जो है शहीद कर दिया, उनके सर को कलम कर लिया। आका हुसैन की बारगाह में अरीज़ा पेश किया जाए, ए मेरे आका हुसैन, सजदा तो इतना लंबा नहीं किया जाता है, जब इंसान सजदा करता है तो 3 बार तस्बीह पढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार तस्बीह पढ़ता है। शरीयत में छूट भी है, अगर इंसान को जल्दी कहीं जाना है, जल्दी में नमाज पढ़नी है तो तस्बीह 1 बार भी पढ़ सकता है, मगर आपने इतना लंबा सजदा क्यों किया? तो मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, मैं सजदा भी कर रहा था और जो है वो एक ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को पूरा भी कर रहा था। सुभान अल्लाह। मैं खुदा की इबादत भी कर रहा था, एक ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को पूरा भी कर रहा था। तसव्वुर के आलम में लोग अरीज़ा पेश करते हैं, मेरे आका इबादत तो समझ में आती है मगर ज़रूरत क्या थी, ज़रूरत समझ में नहीं आती। अब मेरे आका हुसैन आलम तसव्वुर में जवाब देते हैं, ऐ लोगों, मक्के की सरज़मीन है, एक मरतबा मेरे नाना की बारगाह में हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए थे, और लाने के बाद जिब्रील ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मैं जहन्नम की सैर करके आ रहा हूँ। मैंने जहन्नम में तमाम अम्बिया की उम्मतियों को जहन्नम की आग में जलते हुए देखा है। आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत को देखा है, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की उम्मत को देखा है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्मत को देखा है, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को जो है जहन्नम की आग में जलते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है, और जो है वो जलते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को देखा है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत को देखा है, इसहाक़ अलैहिस्सलाम की उम्मत को देखा है, याकूब अलैहिस्सलाम की उम्मत को देखा है, और जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को देखा है, दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत को देखा है, हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत को देखा है, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को देखा है, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को मैंने जहन्नम की आग में जलते हुए देखा है। इतना कहने के बाद जो है जिब्रील अमीन खामोश हो गए थे। वो जानते थे अगर मैं कह दूं या रसूल अल्लाह मैंने आपकी उम्मत को भी देखा है तो मेरे आका बेकरार हो जाएंगे, मेरे आका बेचैन हो जाएंगे। रुक गए मेरे आका, इरशाद फरमाते जिब्रील आगे बताओ। जिब्रील खामोश है। फिर मेरे मुस्तफ़ा फरमाते जिब्रील और बताओ किसकी उम्मत को देखा है। जिब्रील खामोश रहे। बार बार इसरार करने पे मेरे आका इरशाद फरमाते जिब्रील बताओ क्या तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम की आग में जलते हुए देखा है। इतना सुनने के बाद जिब्रील अमीन इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम की आग में जलते हुए देखा है। इतना सुनना था कि मुस्तफ़ा के आंखों से आंसू निकले और निकलने के बाद मेरे आका ने जो है तमाम जो है वो मक्के की सरजमीन को छोड़ के, मक्के के जो है गलियां को छोड़ के और मक्के को छोड़ के मेरे मुस्तफ़ा जो है एक पहाड़ पे चले गए, एक गार के अंदर चले गए। और जाने के बाद जब मेरे मुस्तफ़ा ने अपने सरे पाक को जो है एक पत्थर पे रखने के बाद जो है अब अल्लाह की बारगाह में मेरे आका दुआ करने लगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अपनी गुनहगार सियाकार उम्मत को याद करने लगे, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी उम्मत को माफ फरमा दे, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि मेरे आका जो है
है रब्बे हबली उम्मती की सदा बुलंद कर रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे आका के आंखों से आंसू गिर रहे हैं, मेरे आका रब्बे हबली की सदा बुलंद कर रहे हैं। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा है, और जो है हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा है मक्के की गलियों में ढूंढ रही हैं, मक्के की गलियों में तलाश कर रही हैं। सहाबा से कहती हैं अब्बा जान का पता नहीं चल रहा है, एक दिन गुजर गए, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, पता नहीं चल रहा है, मेरे वालिदे गिरामी कहाँ चले गए हैं। सहाबा से फरमाती हैं कि मेरे अब्बा को ढूंढा जाए। तमाम सहाबा मिलकर ढूंढते हैं, तमाम लोग मिलकर ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते जब पहाड़ के करीब जाते हैं तो एक चरवाहा मिलता है। सहाबा ने पूछा था चरवाहे से कि बताओ क्या तूने मेरे नबी को देखा है, काली कमली वाले को देखा है, सिया जुल्फे वाले को देखा है? तो चरवाहे ने कहा था मैं नहीं जानता तुम्हारे नबी कौन है, मैं नहीं जानता काली कमली वाले कौन है, मैं नहीं जानता सिया जुल्फे वाले कौन है, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि सामने वाले पहाड़ के गार में एक ऐसा इंसान है जो फूट कर इस तरह से रो रहा है जिसके रोने की आवाज को सुनकर बकरियों ने चरना बंद कर दिया है, बकरियों ने चरना बंद कर दिया है। ऐ मुसलमानों, जो मेरे मुस्तफ़ा आंसू बहा रहे थे खानदान के लिए नहीं बहा रहे थे बल्कि गुनहगार उम्मत के लिए बहा रहे थे, हमारे और आपके लिए बहा रहे थे। आज जब हम नबी के नाम का जुलूस लेकर निकालते हैं तो बेईमान तबका, कलमा पढ़ने वाला तबका दलीलें मांगा फिरा करता है, ये दलीलें मांगा करता है। कहाँ लिखा है जुलूस निकालना चाहिए, कहाँ लिखा है जश्न मनाना चाहिए? अरे मेरे मुस्तफ़ा ने हमारी खातिर जो है आंसू बहाए हैं, ये हमारा तकाजा बनता है, फरीजा बनता है। हम एक दिन नहीं बल्कि साल के 365 दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत का जुलूस निकाले, नबी का शुक्रिया अदा करे, तब भी अदा नहीं कर सकते हैं, सुभान अल्लाह, तब भी अदा नहीं कर सकते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत आंसू बहा रहे हैं गुनहगार उम्मत के लिए। सहाबा फरमाते अगर इस तरह कोई रोने वाला होगा तो कोई और नहीं मेरे नबी होंगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत होंगे। सहाबा तशरीफ ले गए, मेरे मुस्तफ़ा गुनहगार उम्मत की याद में आंसू बहा रहे हैं। लोग हजरत फातिमा के पास आए और आने के बाद कहा है फातिमा तुम्हारे अब्बा जान का पता तो चल गया है मगर सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं, सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। हजरत फातिमा तशरीफ ले जाती हैं और ले जाने के बाद जो है रब की बारगाह मरीजा पेश करती हैं, मौला मैं तेरी बारगाह में मैं दुआ करती हूँ, मेरे वालिदे गिरामी जो है सजदे से सर को नहीं उठा रहे हैं, आज तक मेरे सर से चादर ततहीरा नहीं उतरी है, आज मैं चादर ततहीर को जो है अपने सरे पाक से उतार कर तेरी बारगाह में वसीला बनाकर दुआ करती है। मौला मेरे वालिदे गिरामी सजदे से सर को उठा लें। जैसे ही ये वसीला देने के लिए हजरत फातिमा अरीजा करती है वैसे ही मुस्तफ़ा जाने रहमत सजदे से सर को उठा लेते हैं और उठाने के बाद फरमाते फातिमा तूने बहुत जल्दी कर दिया और मुझे उठा दिया, मेरी कुछ गुनहगार उम्मत रह गई थी जिसको मैं बख्शवा न पाया, तूने जल्दी कर दिया, थोड़ी देर और मैं सजदे में रहता तो अपने रब से सारी उम्मत को बख्शवा लेता। सरकार इमाम हुसैन करबला के मैदान में है, इरशाद फरमाते हैं अमल तो हो गई है, इबादत तो हो गई है, जरूरत पूरी इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे नाना जान ने, मेरी माँ ने मेरे नाना जान को सजदे से जल्दी उठा दिया था। मेरे नाना जान ने कहा था फातिमा जल्दी कर दिया है, सजदे से उठा दिया है, और जो है थोड़ी देर और मैं सजदे में रहता तो नाना की गुनहगार उम्मत को बख्शवा लेता। ऐ लोगों, जरूरत उसी की जरूरत में पूरा कर रहा हूँ, मैं एक ऐसा सजदा कर रहा हूँ, एक ऐसा सजदा कर रहा हूँ कि मैं सजदे में जा रहा हूँ और कयामत तक सजदा करता रहूंगा। यही सजदे को उठाकर नाना के दामन में डाल दूंगा। ये नाना तो आपकी उम्मत रह गई थी, हुसैन का सजदा ले लीजिए, अपने गुनहगार उम्मत की
बख्शिश करा लीजिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत सरकार मकबूल आलम शहीद, सरकार मकबूल आलम शहीद, सरकार हजरत इमाम हुसैन, सरकार हजरत इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाना जान की झोली में सजदे को डाल दूंगा और कह दूंगा नाना जान जिसकी जिसकी चाहिए बख्शिश करा लीजिए, जिसको जिसको चाहिए जन्नत में दाखिल कर दीजिए। पता ये चला सरकार सैयदना इमाम हुसैन भी को भी करबला के मैदान में नाना की उम्मत की फ़िक्र है। सुभान अल्लाह, हम गुनहगारों के फ़िक्र है। आइए जो है मौजू की तरफ चलते हैं। करबला का वो खूनी मैदान है, मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख़ है, आज ही का दिन है और तमाम निसार जामे शहादत नोश कर चुके हैं। वैसे ही अचानक इमाम हुसैन की निगाह पड़ती है तो 2 छोटे छोटे बच्चे जो है वो जो है तलवार को लिए हुए फ़ज़ा में लहराते हुए इमाम हुसैन के पास आकर इजाज़त तलब करते हैं। मामू जान इजाज़त दे दीजिए, हम लोग भी मैदान कारज़ार में जाना चाहते हैं। हज़रत ज़ैनब के 2 बेटे हैं जिनका नाम औनो मोहम्मद है, आकर गुजारिश कर रहे हैं कि मामू जान इजाज़त दे दीजिए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो करबला के मैदान में मौजूद थी, हज़रत इमाम हुसैन की सगी बहन है, उनके दोनों सगे भांजे हैं। औनो मोहम्मद नन्ही सी उम्र है, तलवार लेकर आ गए हैं और आने के बाद इमाम हुसैन से इजाज़त तलब कर रहे हैं। आका हुसैन फरमाते नहीं बच्चे, मैं तुम लोगों को इजाज़त नहीं दे सकता हूँ, ये बताओ तुम लोगों को तैयार किसने किया है। औनो मोहम्मद फरमाते हैं मेरी वालिदा ने तैयार किया है, मेरी वालिदा ने हम लोगों को सजाया है, हम लोगों को सवारा है, ये हाथ में तलवारें पकड़ाई हैं और पकड़ाने के बाद कहा है बेटा जाओ अपने आप को अपने मामा के नाम पे कुर्बान कर दो, अपने मामा के जो है कदमों पे निछावर हो जाओ, अपने मामा के नाम पे कुर्बान हो जाओ। ये मेरे आका हुसैन हम लोगों की इजाज़त, हम लोगों को इजाज़त दे दीजिए। हज़रत इमाम हुसैन हज़रत ज़ैनब से फरमाते हैं ए ज़ैनब ये तुम क्या कर रही हो, ये दोनों मेरे भांजे हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, मैं इनसे प्यार करता हूँ, तूने इनको किन मैदान में भेज दिया। तो हज़रत ज़ैनब फरमाती हैं ए मेरे भाई जान, ये मेरे बच्चे जो है आपके ऊपर कुर्बान होंगे, इसलिए कि मैदान महशर में अगर नाना जान ने मुझसे पूछ लिया ए ज़ैनब मेरा नवासा हुसैन करबला के मैदान में शहीद हो गया, तू अपने बच्चों को बचा के ले आई है, अपने बच्चों को तूने मेरे नवासे के ऊपर कुर्बान नहीं किया है, तो मैं नाना जान को क्या जवाब दूंगी। मेरे भाई जान जो है आप मेरे बच्चों को इजाज़त दे दीजिए, मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त दे दीजिए। अब बार बार इसरार करने पे हज़रत इमाम हुसैन ने गले से लगाया और लगाने के बाद इजाज़त दे दी जाए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 22,000 का मजमा है, 22,000 यजीदी हैं। ये मासूम बच्चे जो है करबला के मैदान में अपनी नन्ही नन्ही तलवार को लहराते हुए यजीदियों के सामने में जो है यजीदियों के सामने पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद अपनी तलवार से यजीदियों के ऊपर वार कर देते हैं। ऐ मुसलमानों शेर इसको कहते हैं। ये यजीदी जो 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर आ गया था, इसको बुज़दिली कहते हैं। और 22,000 के मजमे में 2 छोटे छोटे बच्चे तलवार को लिए हुए जो है वो शेरों की तरह जो है तलवारों को लहराते हुए यजीदियों के पास जाके यजीदियों के साथ जंग करने लगे। बहादुरी इसको कहते हैं, हिम्मत इसको कहते हैं, दिलेरी इसको कहते हैं। और मोहम्मद तलवार लहरा रहे हैं और लहराने के बाद यजीदियों से मुखातब होके कह रहे हैं शहरे कातिल में जीने का जिगर रखते हैं, हम मोमिन हैं, मरने का हुनर रखते हैं। वो कायर हैं जो मैदान से भाग जाते हैं, हम हुसैनी हैं, हथेली पे सर रखते हैं। यजीदियों के जो है सामने घुसकर जो है औनो मोहम्मद लड़ते पिड़ते जो है लड़ते जो है और यजीदियों ने जो है 22,000 का जो है वो लश्कर था, यजीदियों ने हमला करना जो शुरू किया जो है बहुत सारे जख्म तीरों के लगे, तलवारों के लगे। ये छोटे छोटे बच्चे थे, कब तक लड़के आखिरकार जो है लड़ते काफी यजीदियों को जो है वो भी नारे जहन्नम करने के बाद
یہ لوگ بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. حضرت امام حسین تشریف لاتے ہیں. لانے کے بعد دونوں معصوم جو ہے اپنے بھانجوں کو اٹھاتے ہیں. اٹھانے کے بعد خیمے کی طرف لاتے ہیں اور لانے کے بعد جو ہے ایک جو ہے آواز گونجتی ہے, اے لوگوں ماموں بھانجے کا پیار دیکھنا ہے تو کربلا کی تاریخ پڑھو. اگر ماموں بھانجے کا پیار دیکھنا ہے تو کربلا کی تاریخ پڑھو. حضرت زینب نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے بھائی کے قدموں پہ قربان کر دیا. اب ترک جو ہے کربلا کے میدان سے ایک آواز بلند ہوتی ہے, اے لوگوں بھائی بہن کا پیار دیکھنا ہے تو کربلا کی تاریخ پڑھو. ماں کو بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے, ماں بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے, ایک ماں کا دل ہی جانتا ہے. مگر اس ماں نے جو ہے اپنے بھائی کے نام پہ ان بیٹوں کو بھی قربان کر دیا, اپنی ممتا کو قربان کر دیا. اب کربلا کی تاریخ سے جو ہے کربلا کے میدان سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے, اے لوگوں بھائی بہن کا پیار دیکھنا ہے تو کربلا کی تاریخ پڑھو. ماموں بھانجے کا پیار دیکھنا ہے تو کربلا کی تاریخ پڑھو. سرکار سیدنا حضرت اولو محمد بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. ایک کے بعد دیگرے تمام جو ہے جانی سران آتے رہے, جام شہادت نوش کرتے رہے. حضرت عباس علم بردار کھڑے ہوتے ہیں. ہونے کے بعد ارشاد فرماتے بھائی جان اجازت دے دیجئے, حضرت سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی ہے, بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو پانی کے لیے جو ہے وہ پانی کے لیے زبان بار بار باہر نکال رہے ہیں. بھائی جان اجازت دے دیجئے. تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ اے عباس تم جو ہے میری نشانی ہو, اگر تم چلے جاؤ گے جام شہادت نوش کر لو گے تو علم کون اٹھائے گا, میرے جھنڈے کی حفاظت کون کرے گا, میرے جھنڈے کی حفاظت کون کرے گا. تم میرے والد کی ایک نشانی ہو, میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں. حضرت امام حسین سے حضرت عباس علم بردار فرماتے ہیں بھائی جان جو ہے اجازت دے دیجئے, مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, بچوں کا پیاس دیکھا نہیں جاتا ہے, بچوں کا بار بار جو ہے وہ زبان باہر نکلنا دیکھا نہیں جاتا ہے. بار بار اصرار کرنے پہ سرکار سیدنا امام حسین نے حضرت عباس علم بردار کو گلے لگایا اور گلے لگانے کے بعد جو ہے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دیا. حضرت عباس علم بردار ہیں, گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں, تلوار کو لیتے ہیں اور لہراتے ہوئے جیسے ہی کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے سامنے جاتے ہیں تو یہ خلبلی مچ جاتی ہے. یزیدی پکار کے کہنے لگتے ہیں ارے یہ علی کہاں سے تشریف لے گئے. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ حضرت مولا علی نجف اشرف سے تشریف لا رہے ہیں. حضرت سرکار سیدنا عباس علم بردار ہیں, یزیدیوں کے سامنے پہنچ گئے, مگر یہ علی کا شہزادہ, اے علی کا بیٹا, علی کا نور نظر, جس کے رگوں میں حضرت علی کا خون دوڑ رہا تھا, جیسے یزیدیوں کے سامنے پہنچتا ہے تو کسی یزیدی کی ہمت نہیں ہوتی ہے جو حضرت عباس علم بردار کے مقابلے میں آئے. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت عباس علم بردار کربلا کے میدان میں لڑنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے, بلکہ پانی لینے کے لیے گئے تھے. پانی لینے کے لیے گئے تھے, وہ یہ سوچ رہے تھے پانی کا مشکیجہ کسی طریقے سے جو ہے خیمہ حسین میں پہنچا دیا جائے تاکہ معصوم بچے جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے پانی پی لیں. سرکار سیدنا حضرت عباس علم بردار ہیں, گھوڑے کو جو ہے ایڑ لگاتے ہیں اور یزیدیوں کے نرغے میں گھس جاتے ہیں. یزیدی مارے ڈر کے راستہ دے دیتے ہیں. امام حضرت عباس علم بردار گھوڑے کو ایڑ لگانے کے بعد سیدھے نہر فرات میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد جو ہے وہ چلو میں جب پانی لیتے ہیں پینے کے لیے, خیال آتا ہے میں پانی کیسے پی سکتا ہوں, سکینہ پیاسی ہے, معصوم علی اصغر پیاسا ہے, خیمے کے لوگ پیاسے ہیں, وہ چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں, میں پانی کیسے پی سکتا ہوں. چلو میں پانی اٹھایا گرا دیا, گھوڑے کی لگام کو ڈھیلا کیا کہ گھوڑے پانی پی لیں. گھوڑے نے بھی تصور میں جواب دیا میرے آقا عباس اگر آپ پانی نہیں پیتے ہیں تو یہ جانور بھی وفادار ہے, جانور بھی پانی نہیں پیے گا. جب آقا پانی نہیں پی سکتا ہے تو غلام کیسے پانی پی سکتا ہے. یہ جانوروں کو اتنی تمیز تھی, جانوروں کو معلوم تھا
یہ اہل بیت اطہار ہے، یہ رسول اللہ کے خاندان والے ہیں، یہ نبی کے گھرانے والے ہیں، یہ اہل بیت ہیں، ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کی تکریم کرنی چاہیے، ان کی جو ہے عزت و تعظیم کرنی چاہیے۔ مگر یہ دو پیر والے جانور کربلا کے میدان میں موجود تھے، جنہیں حسین کی عظمت کا پتہ نہ چل سکا، حسین کے وقار کا پتہ نہ چل سکا، حسین کے جو ہے مرتبے کا پتہ نہ چل سکا۔ جو ہے گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ پھر سرکار سیدنا حضرت عباس علمبردار نے مشکیجہ پانی کا بھر لیا، اور مشکیجہ بھرنے کے بعد جو ہے وہ گھوڑے پہ سوار ہو گئے، اور گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد جو ہے وہ مشکیجہ لے کر چلے ہیں۔ جب چلے ہیں یزیدیوں میں خلبلی مچ گئی، یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی۔ اے لوگوں، اگر عباس علمبردار نے یہ پانی کا مشکیجہ حسینی خیمے میں پہنچا دیا اور لوگوں نے پانی پی لیا تو ان پہ قابو لانا بڑا مشکل ہو جائے گا، ان سے جو ہے جنگ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، پھر جنگ کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا، بدل جائے گا۔ اس لیے اے لوگوں جو ہے چاروں طرف سے گھیر کے حضرت عباس علمبردار پہ حملہ کرو۔ حضرت عباس علمبردار کی خواہش یہ تھی کسی طریقے سے جو مشکیجہ خیمہ حسینی میں پہنچ جائے۔ حضرت عباس علمبردار نے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، ایڑ لگانے کے بعد یزیدیوں کے پاس پہنچے ہیں، یزیدیوں نے راستہ روک لیا۔ امام سرکار سیدنا حضرت عباس علمبردار فرماتے ہیں اے لوگوں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حسین بن علی یوں ہی نہیں آئے ہیں، بلکہ ان کو بلایا گیا ہے، تم لوگوں نے خط لکھ کر بلایا ہے، ان کو بلایا گیا ہے، اس کے بعد تم ان کے جان کے دشمن بن گئے ہو، ان کے اوپر کھانا اور پانی بند کر دیے ہو، کھانا اور پانی بند کر دیے ہو۔ اس طرح سے جو ہے تقریر کرنے کے بعد سرکار سیدنا حضرت عباس علمبردار نے جو ہے وہ گھوڑے کے لگام کو جو ہے کھینچا، ایڑ لگائی، گھوڑا بڑھنے لگا، ابن سعد چلانے لگا اے لوگوں چاروں طرف سے مل کر حملہ کرو۔ اور یزیدیوں میں دور دور سے پہلوان بلائے گئے تھے، کوئی ملک شام سے آیا تھا، کوئی ملک ایران سے آیا تھا، کوئی عراق سے آیا تھا، نامی گرامی پہلوان جو ہے لڑنے کے لیے بلائے گئے تھے۔ اب سرکار سیدنا حضرت عباس علمبردار پہ چاروں طرف سے مل کر یزیدی حملہ کرنے لگتے ہیں، کوئی تیروں سے، کوئی جو ہے بھالوں سے، کوئی تلواروں سے حملہ کرنے لگتا ہے۔ ایک ناہنزار یزیدی نے پیچھے سے حضرت عباس علمبردار کے بازو پہ زور سے مارا ہے کہ حضرت عباس علمبردار کا بازو جدا ہو جاتا ہے، بازو کٹ جاتا ہے۔ دوسرے کندھے پہ مشکیجہ رکھ لیا، پھر اسی ہاتھ سے جو ہے یزیدیوں سے حضرت عباس لڑنے لگتے ہیں، پھر بہت سارے یزیدیوں کو مارتے ہیں۔ خواہش یہ ہے کسی طریقے سے مشکیزہ خیمہ حسینی میں پہنچ جائے، چاروں طرف سے یزیدی گھیر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ناہنزار یزیدی نے اس بازو میں بھی تلوار کا ایسا وار کیا ہے، وہ بازو بھی کٹ کے جو ہے زمین پہ گر جاتا ہے۔ حضرت عباس علمبردار نے مشکیجہ جو ہے اپنے دانتوں سے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد جو ہے تیزی کے ساتھ خیمہ حسینی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ادھر یزیدی للکار رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے اسکا رہے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ اسکا رہے ہیں، بتا رہے ہیں یزیدیوں چاروں طرف سے حملہ کرو، ورنہ اگر پانی کا ایک قطرہ بھی جو ہے اگر حسین کے خیمے میں پہنچ گیا تو ان کے اوپر قابو پانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دور سے ایک ناہنزار یزیدی نے ایک ایسا تیر مارا ہے مشکیجے میں، ایسے مشکیجے کے نیچے لگا ہے، اور سارا پانی گر جاتا ہے، سارا پانی گر جاتا ہے، اور گرنے کے بعد پانی گر جاتا ہے، مشکیزہ گر جاتا ہے۔ حضرت عباس علمبردار ہیں جو اپنے دانتوں سے جو ہے وہ مشکیزہ کو پکڑتے گر جاتا ہے۔ اس کے بعد چاروں طرف سے جو ہے یزیدی حملہ کرنے لگتے ہیں، چاروں طرف سے تیروں سے، تلواروں سے، بھالوں سے حملہ کرنے لگتے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار نڈھال ہو کے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں اے میرے آقا حسین میری خبر لیجئے۔ میرے آقا حسین تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے عباس علمبردار میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میری کمر ٹوٹ گئی، تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ حضرت عباس علمبردار کو میرے آقا حسین اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد خیمے کی طرف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد جو ہے حضرت عباس علمبردار فرماتے ہیں میرے آقا حسین مجھے معاف کر دیجئے، میں سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا، میں جو ہے خیمہ حسینی میں پانی نہ لا سکا، مجھے معاف کر دیجئے۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں ٹھیک ہے میرے بھائی
भाई जाओ, बाबा तुम्हारा जो है आबे कौसर का पानी लेके इंतजार कर रहे हैं। हजरत अब्बास अलंबरदार को आका हुसैन लेकर आते हैं, अपने गोद में सरे पाक को लेकर जो है बैठते हैं। कुछ देर के बाद रूह जो है कब से उनसरी से परवाज कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अब्बास अलंबरदार भी जामे शहादत नोश कर जाते हैं। उसके बाद जो है हजरत इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, बाबा जान अब मुझे इजाज़त दे दीजिए, अब मुझे जंग में जाने की इजाज़त दे दीजिए, अब मुझे जाने की इजाज़त दे दीजिए और मैं अब जाता हूँ, यजीदियों को मज़ा चखाता हूँ। सरकार सैयदना इमाम हुसैन ने मना किया, मगर सरकार सैयदना हजरत अली अकबर फरमाते हैं, बाबा जान आपके बाद में लोगों का दुनिया में रहना जो है बेकार है, हम लोग कैसे रह सकते हैं, इसलिए जो है आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। सरकार सैयदना इमाम हुसैन ने हजरत अली अकबर को अपने हाथों से तैयार किया। आए मुसलमानों, बाप बेटे की मोहब्बत क्या होती है, बाप बेटे से मोहब्बत कैसे करता है। जिनको औलाद नहीं है उनसे पूछिए, इंसान मिन्नतें मांगता है, इंसान दुआएं करता है, मज़ारों पे हाजिरी लगाता है, डॉक्टरों के चक्कर काटता है कि उसको औलाद हो जाए, अल्लाह औलाद से नवाज दे। करबला के मैदान में इमाम हुसैन अपने बेटे को, जो हम शबीहे पैगंबर थे, हम शबीहे मुस्तफ़ा थे, मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि हजरत अली अकबर का चेहरा ऐसा था कि जिसको मुस्तफ़ा को देखना होता वो हजरत अली अकबर को देख लेता। यानी हम शबीहे मुस्तफ़ा थे, जिसको नबी की याद आती थी। इमाम हुसैन फरमाते अली अकबर को देख ले कि हूबहू मुस्तफ़ा के जैसे थे, बेपनाह मोहब्बत करते थे, हर नाज़ो अदा को उठाया करते थे। हुसैन बेपनाह मोहब्बत करते थे, मगर अपने हाथों से तैयार किया है, अपने हाथों से पटका बांधा है, अपने हाथों से जो है वो सर पे अमामा बांधा है, अपने हाथों से हाथ में तलवार पकड़ाया है, घोड़े पे सवार किया है, सजाने के बाद जो है यजीदियों की तरफ भेज दिया है। अब जो है करबला के मैदान से एक आवाज बुलंद होती है, ऐ लोगों, बाप बेटे की मोहब्बत देखना है तो करबला की तारीख पढ़ो, बाप बेटे का प्यार देखना है तो करबला की तारीख पढ़ो, बेटे और बाप की मोहब्बत देखनी है तो करबला की तारीख पढ़ो। सरकार सैयदना हजरत अली अकबर जो है मैदान कारजार में, जो है जंग के मैदान में, करबला के मैदान में यजीदियों से मुखातब होकर इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, मुझे अकबर बिन हुसैन कहते हैं, अकबर बिन हुसैन बिन अली कहते हैं, मैं हुसैन का बेटा हूँ, मैं अली का पोता हूँ। ये हुसैन को तुम लोगों ने बुलाया है, खत लिख कर बुलाया है, खुद नहीं आए हैं। बुलाने के बाद तुम लोगों ने उनके साथ जो है बहुत जो है वो बुज़दिलाना हरकत किया है, उनके खून के प्यासे हो गए हो। देखो तुम्हारे सामने हुसैन जो है अकबर बिन हुसैन बिन अली है, जिसकी माँ ने दूध पिलाया है। अकबर बिन हुसैन के मुकाबले में आ जाओ, जिसकी रगों में खून है, जिसके बाजुओं में ताकत है, तो अकबर बिन हुसैन के मुकाबले में आ जाओ। हजरत अली अकबर करबला के मैदान में यजीदियों को ललकार रहे थे, गरज गरज कर यजीदियों से कह रहे थे, मगर यजीदियों के अंदर इतनी हिम्मत और ताकत नहीं थी जो हजरत अली अकबर के मुकाबले में आ जाए। अब सरकार सैयदना हजरत अली अकबर जो है यजीदियों को ललकार रहे हैं। इब्ने साद जो है एक नामी गिरामी पहलवान जो बुलाया था मुल्क शाम से, उससे कहने लगा इसके मुकाबले में जाओ। उसने कहा मैं बच्चे के मुकाबले में नहीं जा सकता। तो इब्ने साद ने कहा था इसे बच्चा न समझो, ये हुसैन का बेटा है, अली का पोता है, इसके रगों में जो है वो हजरत मौला अली का खून है, इसको बच्चा न समझो। इसके मुकाबले में जाके तो देखो नामी गिरामी पहलवान आए थे, वो अंगड़ाई लेता हुआ, शेर की तरह अंगड़ाई लेता हुआ, हाथी की तरह भाजता हुआ जो है वो करबला के मैदान में हजरत अली अकबर के सामने आता है। और आने के बाद कहता है तुम्हें मालूम नहीं है मेरे नाम के चर्चे जो है वो मुल्क शाम और इराक में है, लोग मुझे जानते, मैं नामी गिरामी पहलवान हूँ, मेरे सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, जो मेरे सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। सरकार सैयदना इमाम अली अकबर फरमाते हैं नामी गिरामी पहलवान तू होगा अपने वक्त का, और बहुत बड़ा पहलवान होगा अपने वक्त का, बहुत चर्चे होंगे तेरे नाम का, मगर मुझे अकबर बिन हुसैन बिन अली कहते हैं। मेरी जो है मेरी निगाहों के सामने मेरे लिए तू एक मक्खी और
मच्छर जैसी हैसियत रखता है। इतना कहा वो आग बगूला होके हजरत अली अकबर पे तलवार का वार करता है। अली अकबर ने उसके तलवार के वार की काट किया और काट करने के बाद एक ऐसा तलवार का ज़रब लगाया कि सर अलग है, धड़ अलग है, जमीन पे ढेर हो गया। जब अपने वक्त का नामी गिरामी पहलवान जब जो है वो मार दिया गया हजरत अली अकबर के हाथों से, अब यजीदियों में खलबली मच गई। बहुत बड़ा पहलवान था, नामी गिरामी पहलवान था, बहुत सारे लोगों से अकेले लड़ने वाला था, एक ही ज़रब में मारा गया। अब यजीदियों के होश उड़ गए। अब यजीदियों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही कोई अकेले आके अली अकबर के मुकाबले में आ जाए। इतने में जो है इब्ने साद ने एक और बहादुर पहलवान को जो है हुक्म दिया कि मैंने तुमको बुलाया है, तुम हुजो अली अकबर के मुकाबले में जाओ, फला जगह की गवर्नरी मैं तुम्हें दे दूंगा, इतना इनामो इकराम मैं तुम्हें दे दूंगा, पैसे की लालच दिलाया। वो पहलवान झूमता हुआ हजरत अली अकबर के मुकाबले में आता है और आने के बाद शहादत का नशा ऐसा सवार था, शहादत का ऐसा जज्बा चढ़ा हुआ था कि हजरत अली अकबर ने उस अंगड़ाई लेते हुए पहलवान को आते देखा और देखने के बाद शेर की तरह का ऐसा हमला बोला है कि एक ही ज़रब में मारा है, सर तन से जुदा हो गया है, जमीन पे गिर गया है। उसके बाद जो है अपना में हजरत अली अकबर यजीदियों को ललकारते हैं और किसी बहादुर को भेजो। फिर जब ललकारना शुरू किया तो यजीदियों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही कि कोई अकेले मुकाबले में आए। अब शहादत का नशा ऐसा चढ़ा है कि हजरत अली अकबर तलवार को जो है लहराते हुए यजीदियों के नरगे में घुस गए और घुसने के बाद जो है गाजर मूली की तरह यजीदियों को काटने लगे। गाजर मूली की तरह यजीदी कट कट के गिर रहे थे, जिस तरफ निकल जाते मैदान साफ हो जाता, जिस तरफ निकल जाते मैदान साफ हो जाता। यजीदी मारे डर के पीछे हटने लगते, कट कट के गिर रहे हैं। कुछ देर लड़ने के बाद हजरत अली अकबर तशरीफ लाते हैं अपने बाबा की बारगाह में। ए अब्बा हुसैन, अगर पानी के चंद कतरे मिल जाए तो मैं तमाम यजीदियों को फिनारे जहन्नम कर दूं। ये मेरे अब्बा हुसैन जो है पानी के अगर चंद कतरे मिल जाते। इतना सुनने के बाद इमाम हुसैन ने अपनी अंगूठी निकाली है, अली अकबर के मुंह में डाला है और डालने के बाद का बेटा चूस लो, अन करीब आबे कौसर पीने वाले हो। फिर सरकार सैयदना हजरत अली अकबर यजीदियों के नरगे में घुस जाते हैं और घुसने के बाद जब तलवार का जौहर लगा दिखाने लगते हैं, जब अली के लाल की तलवार चल रही थी, अली अकबर की तलवार चल रही थी, यजीदी कट कट के गिर रहे थे, यजीदियों में कोहराम मच गया। अरे तुम लोग इतने सारे हो, एक इंसान का मुकाबला नहीं कर रहे हो। मालूम ऐसा होता है एक ऐसी तारीख लिखी जाएगी कि 22,000 का लश्कर अकेले एक अली अकबर ने निस्तो नाबूद कर दिया है। ऐसा मालूम होता था हजरत अली अकबर के बाजू में हजरत मौला अली का बाजू लगा दिया गया है। हजरत अली अकबर के तलवार में जुल्फ़िकार हैदरी को पेवस्त कर दिया गया है। ए मौला अली के पोते की तलवार चल रही थी, यजीदी मारे डर के भाग रहे थे, अली अकबर की तलवार चल रही है, काजर और मूली की तरह यजीदी कट कट कर जमीन पे गिर रहे हैं। शहादत का ऐसा नशा सवार था, यजीदियों के नरगे में घुस गए। काटना पीटना जब शुरू किया, यजीदियों ने चारे तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद जो है तीरों से तलवारों से पत्थरों की बारिश कर दी है। हजारों जख्म खाने के बाद हजरत अली अकबर जो है घोड़े की जीन से फर्श जमीन पे आते हैं। आने के बाद वालिदे गिरामी को आवाज लगाते हैं, मेरे आका हुसैन तशरीफ लाते हैं। अली अकबर को लेके आते हैं और आने के बाद इरशाद फरमाते, बेटा मैंने देखा है बाबा जान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, दादी जान तुम्हारा इंतजार कर रही है, नाना जान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सबके हाथों में कौसर का प्याला है, अन करीब आबे कौसर पीने वाले हो। हजरत अली अकबर जो है हजरत इमाम हुसैन के जो है बाहों में दम तोड़ देते हैं और जो है रूह कब से उनसरी से परवाज कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह से हजरत जो है इमाम हुसैन का एक
नौजवान बेटा हो जामे शहादत नोश कर जाता है। जैसे ही अली अकबर की शहादत होती है वैसे ही खेमे में कोहराम मच जाता है, खेमे में रोने और चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। हज़रत ज़ैनब तशरीफ़ लाती हैं, कहती भैया देखिए मासूम अली असगर है जो प्यास की शिद्दत से इसके माँ का दूध भी खुश्क हो गया है, बार बार जो है पानी के लिए ज़बान बाहर निकाल रहा है। भैया इस बच्चे को लेकर यजीदियों के तरफ जाइए और जाने के बाद इस बच्चे के लिए पानी के चंद कतरे उनसे मांगिए, हो सकता है उनके दिल में रहम आ जाए। पानी के चंद घूंट के कतरे जो है ये मेरे लाल के हलक में अगर पड़ जाए तो इसकी ज़िंदगी में ज़िंदगी आ जाए, इसकी जान में जान आ जाए। इमाम हुसैन जो है बार बार बीवियों के इसरार करने पे इमाम हुसैन जो है अली असगर को लेके यजीदियों की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद जब बढ़ते हैं यजीदियों से कहते हैं यजीदियों तुम्हारा मामला हमसे है, ये मेरे मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पानी के चंद कतरे इसके हलक में डाल दो जिसको इसका गला सूख रहा है, इसकी ज़बान सूख रही, चंद कतरे जो है इसके हलक में डाल दो, इसके गले में डाल दो ताकि इसकी जान में जान आ जाए। जैसे ही इमाम हुसैन यजीदियों से कह रहे थे इतने में एक नाहनजार हुरमला नामी शख्स ने जो है तीर का निशाना सांधा है। हजरत इमाम अली असगर की तरफ तीर का निशाना जब सांधा है तो आसमान पे हुरो गिल्मा की चीखें बुलंद हो गई। फरिश्ते आसमान से कहने लगे मौला एक ऐसे यजीदी है जो मासूम बच्चे के हलक में पानी डालने के बजाय तीर छोड़ रहे हैं। फरिश्तों ने कहा मौला इजाजत दे दे, मैं अभी चला जाऊं, इस तीर को घुमाकर खुद हुरमला की तरफ कर दूं, जिसने तीर छोड़ा है उसी के जिस्म पाक में पेवस्त हो जाए। मगर परवरदिगारे आलम की मशीयत ये कह रही थी ऐ फरिश्तों देखो अगर जुल्म करने वाले जाबिर इतना मजबूत है तो सब्र करने वाला हुसैन भी इतना मजबूत है। अगर ये जुल्म करने में जो है बहुत आगे है तो हुसैन सब्र करने में बहुत आगे है। और मला नामी शख्स ने तीर छोड़ा था जो हजरत अली असगर के हुलकूम को छेदता हुआ हजरत इमाम हुसैन के बाजू में पेवस्त हो जाता है। एक नन्ही सी कली वो चमनिस्तान फातिमा का नन्हा सा फूल जो है अपने बाप के गोद में दम तोड़ देता है। ऐ मुसलमानों बताओ किसी का छोटा सा बच्चा मासूम सा बच्चा अपने बाप की गोद में दम तोड़ दे तो बाप के ऊपर क्या बीतती होगी, बाप का जो है बाप की कैफियत क्या होती होगी, बाप की हालत क्या होगी। मासूम बच्चे हज़रत अली असगर ने जो है दम तोड़ दिया। हज़रत अली असगर को इमाम हुसैन खेमे की तरफ ले जाते हैं और ले जाने के बाद हज़रत ज़ैनब को देते हैं और देने के बाद कहते हैं लो मेरा बेटा दुनिया का पानी तो न पी सका मगर आबे कौसर का पानी पी लिया है। उसके बाद इमाम हुसैन ने खून के कुछ कतरे आसमान की तरफ उड़ाए और उड़ाने के बाद इरशाद फरमाते हैं मौला अगर तू इसी में राजी है तो एक अली असगर क्या है, अगर तू मुझे हजारों अली असगर देता तो मैं एक एक करके तेरे नाम पे कुर्बान करता चला जाता। एक अली असगर की क्या बात है। हजरत अली असगर भी जामे शहादत नोश कर जाते हैं। उसके बाद जब खेमे में इमाम हुसैन आते हैं तो क्या देखते हैं बीमार ज़ैनुल आबिदीन हैं, बीमार ज़ैनुल आबिदीन हैं, चल भी नहीं सकते हैं, चलने की भी ताकत नहीं है मगर हाथ में तलवार पकड़ लिया। अब्बा जान मुझे भी इजाजत दे दीजिए, मैं भी मैदान कारज़ार में जाना चाहता हूँ। आका हुसैन फरमाते बेटा तुम बीमार हो, तुम चल नहीं सकते हो, तलवार चला नहीं सकते हो, तुम न जाओ, तुम इन औरतों की हिफाजत करना, सही और सलामती के साथ इनको मक्का पहुँचा देना। तुमसे जो है मेरी नस्ल बढ़ेगी, मेरी नस्ल चलेगी बेटा, तुम्हें मैं इजाजत नहीं दे सकता, तो तुम्हें मैं इजाजत नहीं दे सकता, मेरी तुम एक निशानी हो बेटा, खेमे के अंदर जाओ आराम करो, तुम बीमार हो। उसके बाद इमाम हुसैन लाश उठा के अपने निगाहों के सामने बेटों को कुर्बान होता देखकर उसके बाद खुद तैयार होते हैं, जुल्फ़िकार हैदरी लेते हैं, घोड़े पे सवार होते हैं, हुजूर का मामा शरीफ बांधते हैं, सर पे बांधते हैं, हजरत अमीर हमजा का पटका बांधते हैं और बांधने के बाद घोड़े पे सवार होके जो है ए अली का लाल है, ए अली का नूरे नजर है, जिसके रगों में हुसैन का खून है, जिसने फातिमा का दूध पिया है, ये नबी का शहजादा करबला के मैदान में जब आया है तो आने के बाद यजीदियों ने देखा है कि हुसैन आए हैं। अब हुसैन
हुसैन से मुकाबला करना है। अब इमाम हुसैन ने एक तकरीर की थी, ए कूफे के लोगों, यजीदियों, मैं खुद नहीं आया हूँ, तुम लोगों ने मुझे बुलाया है, तुम मेरे नसब को नहीं जानते, मेरे नसब नामे को नहीं जानते। लोग मुझे हुसैन कहते हैं, मेरे बाबा का नाम अली है, मेरे माँ का नाम फातिमा है, मेरे नाना का नाम जो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी का मैं शहजादा हूँ। मेरे आका ने मेरे बारे में इरशाद फरमाया है, मैं जन्नती नौजवानों का सरदार हूँ। मेरे आका ने मुझे कांधों पे बैठा के घुमाया करते थे, मैं जब रोता था तो मेरे आका इरशाद फरमाते थे, ऐ फातिमा हुसैन को रुलाया ना करो, हुसैन रोते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो अब भी मेरे नबी के सहाबा जो है मौजूद हैं, तुम उनसे पूछ सकते हो। इस तरह से इमाम हुसैन ने तकरीर किया। मगर यजीदियों के ऊपर जो है ऐसी जो है हरास है वो हवास जो है तारी हो गई कि यजीदियों के दिल जो है नरम पड़ने लगे। जब यजीदियों के दिल नरम पड़ने लगे तो शिमर जिलजोशन ने देखा कि हो सकता है माहौल चेंज हो रहा है। इसने फिर लोगों को जोश दिलाना शुरू किया और कहने लगा, हुसैन बिन अली, हम तुम्हारी तकरीर सुनने के लिए नहीं आए हैं, अगर यजीद की बैत करना है तो करो, वरना लड़ने के लिए, कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने कहा था, ऐ लोगों सुन लो, ये सदाकत का हाथ है, ये अदालत का हाथ है, ये शुजाअत का हाथ है, ये जो है उस्मान गनी के सखावत का हाथ है, ये पाक हाथ है, नापाक हाथ में नहीं जा सकता है। हुसैन गर्दन तो कटा सकता है मगर यजीद पलीत के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता है। अब सरकार सैयदना इमाम हुसैन ने जुल्फ़िकार हैदरी को लहराया है और लहराने के बाद यजीदियों को आवाज लगाया है, अब आओ जिसकी माँ ने दूध पिलाया है, अली के बेटे के मुकाबले में आ जाओ। जिसकी माँ ने दूध पिलाया है, जिसके बाजुओं में ताकत है, जिसके सीने में कलेजा है, आ जाओ अली के बेटे के मुकाबले में। अब जो है ललकार कर इमाम हुसैन जो है करबला के मैदान में जो है ललकार रहे थे। यजीदी मारे डर के भाग रहे थे मगर जो रब की मशीयत चाहती थी, जो रब की रजा चाहती थी, शहादत का ऐसा नशा सवार था कि इमाम हुसैन जो है तलवार को लहराते हुए यजीदियों को काटने लगते हैं, यजीदियों को काटने लगते हैं। काटते पिटते जिस तरफ निकल जाते मैदान साफ हो जाता, मैदान साफ हो जाता। तलवार इमाम हुसैन की चल रही है, यजीदी कट 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 गिर रहे हैं। इमाम हुसैन की तलवार चल रही है, यजीदी गाजर मूली की तरह कट कट कर जमीन पे गिर रहे हैं। ये नबी का शहजादा है, ये नबी का नवासा है, ये नबी का नूरे ऐन है, ये अली का दुलारा है, फातिमा के आंखों का तारा है। करबला के मैदान में जुल्फ़िकार हैदरी का वो जौहर दिखा रहा था आईने तसव्वुर में। आईने तसव्वुर में जो है इमाम हुसैन की बारगाह मरीज़ा पेश किया गया। मेरे आका हुसैन, आपको मालूम था कि सबको जामे शहादत नोश करना है, आपको भी मालूम था कि मुझे भी जामे शहादत नोश करना है, उसके बावजूद आपने तलवार भी चलाई है, अपने बेटों को कुर्बान भी किया है, अपने कुंबा को कुर्बान भी किया है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, हाँ मुझे मालूम था, मैंने अपना कुंबा इसलिए कुर्बान किया है, मैंने करबला में तलवार इसलिए चलाई है, कहीं मेरे नाना की उम्मत कहीं बुज़दिल न हो जाए, कहीं जालिमों के जुल्म को देखकर मेरे नाना की उम्मत अपने सर को झुका न दे। मैंने करबला के मैदान में तलवार भी चलाई है, कुंबा भी कुर्बान किया है और अपने नाना की उम्मत को ये ज़हन और नजरिया भी दिया है कि ये सर झुकता ही नहीं, किसी जालिम के सामने ऐसी हिम्मत ही दे गया है। सजदा हुसैन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत सरकार मकबूल आलम शहीद, सरकार मकबूल आलम शहीद हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हुसैन शहदाए करबला, जिक्र शहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सब झुकता ही नहीं किसी जालिम के सामने, ऐसी हिम्मत ही दे गया है। सजदा हुसैन का
का। अब इमाम हुसैन की तलवार चल रही है, इमाम हुसैन की तलवार चल रही थी। वो करबला का मंजर जो है इंसान पेश करने से कासिर है। और जो है आसमान की हूरो गिलमा है, आसमान के फरिश्ते हैं। हुसैन की तलवार चल रही थी, फरिश्तों की चीखें बुलंद हो रही थी, मौला एक ऐसा तेरा साबिर हुसैन है जो इतने लाशों को उठाने के बाद जो है इतने बहादुरी के साथ दुश्मनों के नरगे में जो है सब्र और रजा के दामन को मजबूती से पकड़ने के बाद तलवार चला रहा है। मौला तेरे महबूब के दीन की हिफाजत कर रहा है। आसमान से फरिश्ते भी कह रहे हैं, आसमान की हूरो खिलमा भी कह रही है, दुनिया भी पुकार पुकार कर कह रही है, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन की तलवार चल रही थी, इमाम हुसैन की तलवार चल रही थी और यजीदी कट कट कर जमीन पे गिर रहे थे। हुसैन की तलवार चल रही थी, यजीदी कट कट कर जमीन पे गिर रहे थे, यजीदियों की लाशें बिछा दी गई है। तलवार चलती रही, यजीदी कटते गिरते रहे, तलवार चलती रही, यजीदी मरते रहे। तलवार चलते 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 तलवार जो है एक मकाम पे रुक जाती है। जैसे ही तलवार रुक जाती है, यजीदियों ने देखा आखिरकार तलवार क्यों रुक गई। यजीदियों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हुसैन की तलवार को रोका जा सके, हुसैन की तलवार को रोक लें, मगर चलते चलते अचानक हुसैन की तलवार रुक जाती है। अब यजीदियों में खलबली मच गई, आखिरकार हुसैन की तलवार क्यों रुक गई है। वो तलवार क्यों रुक गई है जिस तलवार को जो है 3 दिन की भूख न रोक सकी, जिस तलवार को 3 दिन का प्यास न रोक सका, जिस दिन को जवान बेटे की शहादत न रोक सकी, जिस तलवार को मासूम अली असगर की शहादत न रोक सकी, जिस तलवार को अब्बास अलमबरदार के कटे हुए बाजू न रोक सके, जिस तलवार को जो है हजरत कासिम की जवानी न रोक सकी, जिस तलवार को औनो मोहम्मद जैसे मासूम भांजों की शहादत न रोक सकी, जो इस तलवार को जो है अपने जानिसारों की लाश उठा उठा कर, जिस तलवार को उठा उठा कर जो है खेमे में ला कर जो है लाने के बावजूद हुसैन की तलवार न रुक सकी। आखिरकार वो तलवार कैसे रुक गई। दुनिया ने देखा है, जमाने ने देखा है, कायनात ने देखा है, हुसैन की तलवार रुक गई थी। रुक इसलिए गई थी कि मस्जिदों से अजान हो रही थी, मस्जिदों से अजान के नगमे बुलंद हो गए थे। लोगों ने देखा हुसैन की तलवार रुकी है तो नमाज के लिए रुकी है, हुसैन की तलवार रुकी है तो नमाज के लिए रुकी है। जिस तलवार को 3 दिन की भूख न रोक सकी, जिस तलवार को 3 दिन का प्यास न रोक सका, जिस तलवार को मासूम अली असगर की जो है शहादत न रोक सकी, जिस तलवार को जवान बेटे की लाश न रोक सकी, जिस तलवार को हजरत कासिम की लुटी हुई जवानी न रोक सकी, जिस तलवार को अब्बास अलमबरदार के कटे हुए बाजू न रोक सके, उस तलवार को नमाज ने रोक दिया है, उस तलवार को नमाज ने रोक दिया है। नमाज का वक्त हो गया है, मस्जिदों से अजान के नगमे बुलंद हो गए। सरकार सैयदना इमाम हुसैन जो है वो नमाज पढ़ने के लिए, नमाज अदा करने के लिए जो है तलवार को रोक देते हैं। घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पे आते हैं और आने के बाद अपने सर को सजदे में रख देते हैं। ऐ मुसलमानों, जब करबला का मैदान जो है 61 हिजरी में जो है जब हुआ होगा, उस वक्त जो है न वहाँ पे हम रहे होंगे, न आप होंगे, न हम होंगे, न आप होंगे, न इसमें से कोई इंसान होगा, मगर ये जो आसमान में चमकने वाला सूरज वहाँ पे भी मौजूद था, जो करबला को उस मंजर को देख रहा था, हजरत अली असगर की शहादत को देख रहा था, हुसैन के लड़ने को देख रहा था, हुसैन के सब्र रजा को देख रहा था, अली अकबर की शहादत को देख रहा था, अब्बास अलमबरदार के कटे हुए बाजू को देख रहा था, हजरत कासिम की लुटती हुई जवानी को देख रहा था, उन बीबियों की प्यास की शिद्दतों को देख रहा था, आसमान का सूरज देख रहा था। और आज भी देख कर जो है पूरी कायनात में चमक चमक कर ऐलान कर रहा है, ऐ नबी के कलमा पढ़ने वालों, ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ इमाम हुसैन का नाम लेने वालों, देखो करबला के मैदान में इमाम हुसैन पे पानी भी बंद है, इमाम हुसैन पे खाना भी बंद है, इमाम हुसैन का खुम्बा भी कुर्बान कर दिया गया है। इसके बावजूद हुसैन की नमाज कज़ा नहीं हो रही है, हुसैन का सजदा नहीं छूट रहा है। आज तुम्हारे लिए आलीशान मस्जिदें बनाई जाती है,
مسجدوں میں مخمل والی قالین بچھائی جاتی ہے، تمہارے لیے اے سی کا انتظام کیا جاتا ہے، کولروں پنکھوں کا انتظام کیا جاتا ہے، تمہارے نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں مؤذن رکھا جاتا ہے، مسجدوں میں امام رکھے جاتے ہیں، تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کوئی قسم کی دقت نہ ہونے پائے، اتنا انتظام ہونے کے باوجود جو ہے تم نماز نہیں پڑھا کرتے ہو۔ کربلا کے میدان میں حسین کو دیکھ لو، نہ فرش زمین ہے، نہ مخمل کی چادر ہے، نہ اے سی ہے، نہ کولر ہے، وہ کربلا کا ریگستان منظر ہے تو خون سے لتا پتا ہوا ہے۔ ایسے عالم میں حسین کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے، تم کیسے مسلمان ہو کہ تمہاری نمازیں چھوٹ رہی ہیں؟ یہ چمک چمک کر سورج جو ہے پوری کائنات کو یہ سبق دے رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، اے لوگوں جو ہے نماز نام ہے حسینیت کا، سجدہ نام ہے حسینیت کا۔ امام حسین نے آخری سجدہ کر کے بتا دیا، اے لوگوں مصیبت آئے تب بھی رب کا سجدہ کیا کرو، رب کی عبادت کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرو۔ میرے آقا حسین نے سجدے میں سر کو رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد ایک ناہنزار یزیدی آیا، اور آنے کے بعد جو ہے وہ سینے پہ سوار ہو گیا، اور سوار ہونے کے بعد میرے آقا حسین فرماتے ہیں کس لیے آیا ہے؟ کہا سر قلم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا اپنا سینہ کھول کے دیکھا، جب سینہ کھول کے دکھاتا ہے تو میرے آقا حسین فرماتے ہیں تم میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے تو حسین کے سر کو قلم کر سکے، اور جو ہے ہانپتا کانپتا ہوا سینے سے اترتا ہے چلا جاتا ہے۔ دوسرا یزیدی آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے سینے پہ سوار ہو کے امام حسین فرماتے کیا کرنے آیا ہے؟ کہا سر قلم کرنے آیا ہوں۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں سینہ دیکھا، جب سینہ کھول کے دکھاتا میرے آقا حسین فرماتے ہیں تیرے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے تو حسین کے سر کو قلم کر سکے۔ اب وہ بھی ہانپتا کانپتا بھاگتا ہے۔ تیسرا یزیدی آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے میرے آقا حسین کہتے کس لیے آئے ہے؟ کس لیے آیا ہے؟ کہا سر قلم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا حسین فرماتے سینہ کھول کے دیکھا، جب سینہ کھول کے دکھاتا ہے اس کے سینے پہ سفید داغ نظر آتے ہیں، برس کا جو ہے برس کے سفید داغ نظر آتے ہیں۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں ہاں تو میرے سر کو قلم کرے گا۔ کہا کیسے پتا چلا آپ کو؟ آقا حسین فرماتے ہیں کہ میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب دیا تھا، علم غیب کے مالک میرے مصطفیٰ تھے۔ میرے آقا نے مجھ سے کہا تھا حسین جو تمہارے سر کو کربلا کے میدان میں قلم کرے گا اس کے سینے پہ سفید داغ ہوں گے۔ اس لیے پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نانا کو علم غیب دیا تھا، میرے مصطفیٰ کو علم غیب ہے جس کے بنا پہ میرے آقا نے بہت پہلے بتا دیا تھا جو سر قلم کرے گا اس کے سینے میں سفید داغ ہوگا۔ اس سے پتہ یہ چلا میرے آقا کو علم غیب تھا، میرے آقا نے برسوں پہلے خبر دیا تھا۔ سرکار سیدنا امام حسین کو سجدہ کرتے سجدے میں جاتے پوری دنیا نے دیکھا تھا، زمانہ نے دیکھا تھا، پوری کائنات نے دیکھا تھا کہ امام حسین سجدے میں جا رہے ہیں اور سجدے سے سر اٹھاتے کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ اس یزیدی ناہنزار نے جو ہے امام حسین کے سر پاک کو جو ہے وہ جدا کر دیا، سر کو جو ہے تن سے جدا کر دیا، اور جدا کرنے کے بعد جو ہے سر کو نیزے پہ بلند کر دیا۔ امام حسین کی شہادت ہو جاتی ہے۔ سرکار سیدنا امام حسین جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شرم کے مارے جو ہے سورج بھی اپنے منہ کو چھپا لیتا ہے، ڈھانک لیتا ہے۔ اس طرح سے کربلا کی داستان جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ سرکار سیدنا امام حسین کی شہادت ہوتی ہے اور سرکار سیدنا امام حسین کے جسم پاک پہ گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں۔ اس قدر یزیدیوں نے جو ہے وہ مصیبتیں ڈھائی ہیں، مصیبتیں جو ہے ڈھائی ہیں سرکار سیدنا امام حسین پر، جو انسان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ الغرض یہ ذکر حسین ہے، یہ ذکر حسین جو ہے وہ فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، مگر ایک محبت کا تقاضا ہے، محبت کا ذریعہ ہے، محبت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کیا ہے، انسان مجبور ہو کے
पढ़े या मसरूर होके पढ़े, पढ़ना ही है। अल्लाह ने रोज़ा फ़र्ज़ किया है, मजबूर होके पढ़े या मसरूर होके पढ़े, इंसान को पढ़ना है। मगर ये मोहब्बत हुसैन है, ये ज़िक्र हुसैन है, इसको फ़र्ज़ नहीं किया गया है, इसमें क़ैद नहीं लगाई गई है। फ़र्ज़ होता तो लोग मजबूर होके भी पढ़ते, मसरूर होके पढ़ते, मगर फ़र्ज़ नहीं किया गया है, क़ैद नहीं लगाई है। रब की मशीयत भी यही चाहती है इसको फ़र्ज़ न किया जाए ताकि लोग मजबूर होके ज़िक्र हुसैन करे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मोहब्बत की पहचान बताई है। जो भी ज़िक्र हुसैन करे वो मजबूर होके नहीं बल्कि मसरूर होके करे, मोहब्बत में करे, खुशी में करे, मजबूर होके ना करे। तो अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत भी यही चाहती है महबूब के नवासों का जिक्र हो तो खुशी से हो, मोहब्बत से हो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल नूरबार को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए। हम सबको इमाम हुसैन की फयूज़ व बरकत